Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to have some discussion about MCQs of circulation and gases exchange. These are some important MCQs chosen from Miller and Harley zoology. So it is recommended that you must revise that chapter before going to these MCQs. Let's move to the question number one. Question number one is about transport of gases. The transport of gases is a function of which system of our body. Respiratory system, is concerned with exchange of gases, and lymphatic system returning of body fluids. Excretory system waste removal, but circulatory system is involved in the transport of nutrients, waste as well as gases. So right option will be Charlie. That major system which is involved in the exchange of gases is respiratory system. लेकिन जब ये पूछा जाएगा that transport of gases किसका function है, you move towards a circulatory system. Charlie is the right option. What kind of circulatory fluid is used by pseudocoelomate invertebrates such as rotifers, gastrotrichs, and nematodes? They make use of coelomic fluid for transport of different substances. और इस डायग्राम में different coelomocytes shown हैं. Number 3, body cavity of insects is dash in which hemolymph is pumped. तो insects के अंदर coelom जो है वो reduce हो गई है in the form of hemocoel. That's why right option will be beta over here. कि insects की जो body cavity है जहाँ पे fluid pump होता है sinuses में, that body cavity is termed as hemocoel. Open circulatory system can be observed in which of the following groups? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें मोलस्का के कुछ क्लासेस में भी नजर आता है, आर्थ्रोपोडा में भी, और एसिडियम जैसा कि राइट साइड पे डायग्राम में भी शोन है इनके अंदर. तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे डेल्टा. नंबर 5, one of the following is not a coelocyte of invertebrates coelomic fluid. अमीबोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इलियोसाइट्स और लेम्पोसाइट्स. तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास बीटा, because it is the white type of white blood cell. बाकी जो में coelomic fluid के अंदर free floating cells different types की वो नजर आते हैं, जिसमें बाकी भी types हैं लेकिन amoebocytes भी हैं, ileocytes भी और lymphocytes भी. Which of the following is not the function of coelomic fluid in invertebrates, जो कि इनका circulatory fluid होता है in most cases? Transport of gases and nutrients. Gases की transport के लिए हम कुछ इन्वर्टिब्रेट्स यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट के लिए यूज करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के तौर पे यूज होता है. बट फेगोसाइटोसिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेस. नंबर 7, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इन वर्टिब्रेट ब्लड इज. तो 75% जो पोर्शन है वर्टिब्रेट ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन में से वो एल्ब्यूमिन ऑक्यूपाई कर रही होती है. रिमेनिंग 25% इज ऑक्यूपाइड बाय ग्लोबुलिन और लेस देन 1% जो है वो फिब्रिनोजन भी इन्वॉल्व होती है. थ्रोम्बिन इज अ प्रोटीन ऑफ प्लेटलेट. ये प्लाज्मा प्रोटीन है ही नहीं. नंबर 8, परसेंटेज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्टिब्रेट्स. तो ये लेस देन 2% या 1 to 2% इसको कहते हैं कि ये हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स की परसेंटेज होती है. मेजॉरिटी ऑफ ब्लड सेल्स दे आर रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम 45 to 55 लाख या 4.5 to 5.5 मिलियन जो एट्रीब्यूट करते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर. और व्हाइट ब्लड सेल्स दे आर जस्ट 7500 और 7 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. नंबर 9, among all vertebrates which of the following animal has the largest red blood cells? अगर रेड ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व किया जाए तो बाकी वर्टिब्रेट्स में कंपैरेटिवली सबसे जो लार्जर रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमें नजर आते हैं सैलमेंडर के, एंफियोमा स्पीशी के. जैसा कि इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट में सैलमेंडर शोन है, देन बीटा डायग्राम में स्नेक के रेड ब्लड सेल्स, फिर ऑस्ट्रिच, कैंगरू और कैमल. अभी राइट ऑप्शन है चार्ली. One of the following will possess enucleated red blood cells. Enucleated red blood cells they are observed in case of mammals. So right option यहाँ पे होगी कैंगरू. ऑस्ट्रिच के रेड ब्लड सेल्स भी न्यूक्लिएटेड हैं, आपको जैसा कि यहाँ डायग्राम सी में यहाँ पे नजर आ रहे हैं. ऑस्ट्रिच के रेड ब्लड सेल्स दे आर न्यूक्लिएटेड. एज फार एज
Snake red blood cells are concerned, they are shown in the beta diagram, they are also nucleated. And salamander having the largest red blood cells, they are also having nucleated red blood cells. So यहाँ पे right option होगी हमारे पास एक mammalian example, that is kangaroo. Number 11. Most mammals they possess biconcave disc-like red blood cells, but dash have ellipsoidal. If you can observe the red blood cells of camel and llama, they are basically ellipsoidal in shape. Others are of biconcave disc shape, such as in kangaroo. But these red blood cells, which are related to camel and llama as well, they are having ellipsoidal or spherical red blood cells. Generally, number 12, the lower vertebrate tends to have dash but red blood cells than the high vertebrates. तो आप देखिएगा कि जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें relatively fewer red blood cells होते हैं, but they are larger in as compared to high vertebrates. जैसा कि इससे पहले आपने इस डायग्राम में भी ऑब्जर्व किया कि सैलमेंडर उसके रेड ब्लड सेल लार्जर हैं, बट लार्जर होने के साथ साथ इनका नंबर जो है वो रिलेटिवली हाई वर्टिब्रेट्स के कंपैरेटिवली कम होगा. सो राइट ऑप्शन है इस केस में डेल्टा. Number 13, hemoglobin carries waste carbon dioxide gas in the form of. तो hemoglobin जो है वो कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में CO2 को कैरी करेगी because CO2 binds with the amino part of hemoglobin. So right option है यहाँ पे बीटा. As you can see in this case कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बॉडी टिश्यू से डिसॉल्व होगी पहले ब्लड प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स में इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज. यहाँ पर रिएक्शन शोन है कि बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में मेजॉरिटी प्लाज्मा जाती है, प्लाज्मा में जाती है CO2, बट सम ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फ्री फॉर्म एंड सम इज ट्रांसपोर्टेड इन कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन. वो जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी 23% जिसको यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज बेसिकली कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन बिकॉज इट बाइंड्स विद अमाइनो पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन. सो राइट ऑप्शन होगी यहाँ पे बीटा. All white blood cells are derived from bone marrow stem cells during a process known as. तो white blood cells भी जाहिर है blood cell formation जब बाकियों की हुई होगी तो white blood cells भी बनेंगे. And you know blood cell formation process is known as hematopoiesis. So right option है alpha. Hemolysis it refers to the breakdown of red blood cells. Erythropoiesis it refers to the formation of red blood cells only. And phagocytosis is the digestion. Phagocytosis it refers to the engulfment of solid food particles or substances in the blood. So right option यहाँ पे होगी हमारे पास alpha. Hematopoiesis, formation of blood cells as well as white blood cells are formed in this process, as you can see in this process. Number 15, most abundant white blood cells out of the following. If you can observe eosinophil, basophils, neutrophil, lymphocyte, monocyte, that they are the type of white blood cells. तो उसमें most abundant जो कि 62% होते हैं, as far as their percentage is concerned, they are neutrophils. So right option होगी इसके लिए Charlie. The neutrophils are most abundant. Least abundant white blood cell that is less than 1%, they are basophils. So इसमें right option है हमारे पास beta. And if largest in size, which of the following white blood cells are comparatively largest in size? They are monocytes which will form macrophages as well. And smallest in size, they are lymphocytes which are relatively having smaller size, as you can see over here. The lymphocytes, they are of smaller size and monocytes are of larger size as compared to other types of white blood cells. Further, they are differentiated on the basis of type of their nuclei. और न्यूक्लियस की शेप को भी जरूर याद रखिएगा कि बेसोफिल्स में बायलोब न्यूक्लियस है, फिर इसी तरह ईओसिनोफिल्स में बायलोब है, बट इसके जो लोब्स हैं ज्यादा डिफरेंशिएटेड नजर आ रहे हैं. मोनोसाइट्स दे आर हैविंग स्लाइटली कर्व्ड और लोब न्यूक्लियस एंड न्यूट्रोफिल्स दे आर हैविंग 3 to 5 लोब न्यूक्लियस. Lymphocytes BOT they are having larger nuclei which fills the cytoplasm, complete cytoplasm in the circular form as well. इसमें एक कैटेगराइजेशन ये भी है कि जिनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, these granular cells they are known as granulocytes.
which make up 65% of total white blood cells. While 35% of white blood cells, they are lymphocytes and monocytes, they are referred as agranulocytes, out of which 32% is carried out by lymphocyte and just 3% they are monocytes. Question number 16. When B lymphocytes are stimulated, they divide to form. B lymphocytes, they are involved in humoral cell response and they divide to form memory B cells as well as plasma clone cells. Plasma clone cells will secrete antibodies and memory B cells, they are concerned with secondary immune response or future response. As you can see here, when B cells they are stimulated under the stimulus of intact antigens or from helper T cells, they further divide to form plasma B cells and memory B cells. Plasma clone cells, they will form antibodies and memory B cells, they will be concerned with future response or secondary immune response. On the other hand, T cells, they are involved in direct response that is known as cell-mediated immunity or cell-mediated response. If blood cells are removed from blood, then the liquid left is called plasma. और अगर प्लाज्मा में से भी हम क्लॉटिंग फैक्टर्स रिमूव कर दें तो बाकी बचेगा हमारे पास सीरम. Number 18. In the fetus, red blood cells are produced in fetus red blood cells, they are produced in the liver and spleen, while at mature stage, these red blood cells they are produced in bone marrow. Question number 19. The protein which act as catalyst in blood clotting process. तो अगर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को आप ऑब्जर्व करें तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में एक कैटलिस्ट प्रोटीन हमारे पास होती है प्रोथ्रोम्बिन, बिकॉज आफ्टर रिसीविंग स्टिमुलस ऑफ इंजरी प्लेटलेट्स में जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ये थ्रोम्बिन कैटालिटिक फॉर्म में कन्वर्ट होगी और ये चूंकि प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म है, थ्रोम्बिन हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई वी प्रेफर प्रोथ्रोम्बिन. और थ्रोम्बिन इट विल बी इन्वॉल्व इन द conversion of blood plasma protein fibrinogen. Fibrinogen it is soluble blood plasma protein जिसको insoluble fibrin protein में convert किया जाएगा और fibrin को red blood cells के साथ मिलकर injury site पे clot बनाएगी. Number 20, the main reservoir of pro-inflammatory substance, that is histamine, it is released by mast cells or basophil cells. तो भी right option है हमारे पास basophils, जो कि किसी भी आप कह लें कि एलर्जिक रिएक्शन के दौरान या इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग के दौरान हिस्टामिन को प्रोड्यूस करेंगे. मास्ट सेल्स दे आल्सो प्रोड्यूस द सेम रिस्पांस बाय रिलीजिंग हिस्टामिन. नंबर 21, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अराइजेस फ्रॉम, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि तकरीबन हर पेपर में इंक्लूडेड होता है सिस्टम के रेफरेंस से, कि मेसोडर्मल पोर्शन, मेसोडर्मल स्ट्रक्चर्स ये ज्यादा अबंडेंट है. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर आप देखें, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम दे अराइज फ्रॉम मेसोडर्म, जबकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसी से अराइज करेगा, एक्सक्रीटरी, मस्कुलर, स्केलेटल, न्यूटोकार्ड, ड्राइवर्स ऑफ द स्किन एंड लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी एज वेल एज एड्रीनल कॉर्टेक्स. तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हर पास पेपर में इसका जो है वो क्वेश्चन इंक्लूडेड होता है पीपीएससी के केस में. नंबर 22, blood can enter ventricles during all of the following phases of cardiac cycle except. तो ventricular diastole में भी आपको पता है bicuspid tricuspid valves ओपन है, ब्लड इसमें एंटर हो रहा है. atrial systole में तो जो रिमेनिंग ब्लड है वो आएगा और atrial diastole में भी हम बात करते हैं कि जो लॉन्गेस्ट स्टेज है उसके दौरान ventricular diastole भी इंक्लूडेड होगा एक स्टेज में, तो इस वजह से उसमें भी ब्लड एंटर हो रहा होगा. बट ड्यूरिंग ventricular systole बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जिसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स कहते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, उस दौरान ब्लड वेंट्रिकल से निकल रहा होता है इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इनटू द वेंट्रिकल. ये जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. इसलिए हम यहाँ पे राइट ऑप्शन चूज करेंगे इस केस में, इस डायग्राम में डेल्टा, कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड एंटर नहीं हो रहा होगा. नंबर 23, the group of protein that comprises 7% of the plasma, they are albumin, globulin and fibrinogen, while keratin is not the part of plasma protein, so alpha, beta and delta they are not the right option over here.
The portion of harsh sound is related to which one of the following pairs? तो लब और डब साउंड, लब साउंड फर्स्ट साउंड है जो कि एडी वैल्व के क्लोजर से प्रोड्यूस होती है, जबकि डब साउंड एओर्टिक और पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे जो वेल्व्स हैं, सेमी लीनियर वेल्व्स, उनके क्लोजर से प्रोड्यूस होगी। ये शुरू में जो सेमी लीनियर वेल्व्स क्लोज हो रहे हैं, सॉरी एडी वेल्व्स क्लोज हो रहे हैं, उसकी वजह से लब साउंड, और सेकंड जब एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में वेंट्रिकल्स ब्लड पुश करते हैं तो ब्लड आगे जाने के बाद जब उसके बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए सेमी वेल्व्स क्लोज होंगे, तब सेकंड साउंड ऑफ द हार्ट डब साउंड प्रोड्यूस होगी। सो राइट ऑप्शन है इसमें चार्ली। Purkinje fibers are the extensions of, as you can see in the diagram which has been shown over here with the question, कि Purkinje fibers basically ये जो वेंट्रिकल्स की वॉल में प्रोजेक्ट करते हैं फाइबर्स, इनको बोलते हैं, और ये डायरेक्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ रिलेटेड है। इनसाइड ऑफ सेप्टम, एवी नोड या एसए नोड कहने की बजाय ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की स्पेशल जो है वो ब्रांचेस हैं। सो राइट ऑप्शन होगा बीटा इस केस में। डायमीटर ऑफ आर्टरीज आर कंट्रोल्ड बाय, तो आर्टरीज के अंदर भी डायमीटर कंट्रोल करने के लिए इलास्टिक मसल्स या स्मूथ मसल्स की हम बात करते हैं, दे आर फाउंड इन मिडल लेयर दैट इज रेफर्ड एज ट्यूनिका मीडिया, और इंटिमा में तो आप जानते हैं सिर्फ एंडोथेलियल एपिथेलियल सेल्स मौजूद है। ट्यूनिका एक्सटर्नम, इसमें हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, और सीरोसा इट्स द आउटर कवरिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। Which of the following may be reservoir and carrier of hemoglobin in animals? So mainly तो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होती है, बट जनरली अगर हम बात करें सिरोमिक फ्लूइड में भी बाज एनिमल्स के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो मौजूद होती है, और फ्री फॉर्म में डिसॉल्व के अंदर भी, नॉट इन केस ऑफ द हायर वर्टिब्रेट्स, लेकिन बाकी एनिमल्स के अंदर ऐसा मिल जाता है हमें। सो राइट ऑप्शन है डेल्टा, इट कैन बी फाउंड in red blood cells, coelomic fluid, as well as free form dissolved in the blood. Most of the reptiles they have, reptiles mostly they are having four chambered heart but ventricles with incomplete partition. So right option is alpha. Crocodile is an exception कि crocodiles में ventricle birds mammals की तरह completely partitioned होता है, और in other cases reptiles में जो incompletely partitioned ventricle नजर आते हैं in case of reptilian heart, birds mammals और crocodile के अंदर completely partitioned जो है वो हार्ट के फोर चैम्बर्स नजर आएंगे। Which of the following control blood volume? तो ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए लो प्रेशर रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो बैरो रिसेप्टर्स आर्टरीज एओर्टिक आर्च वगैरह के अंदर है वो हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। अभी राइट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, जो ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं, दे आर लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर्स इन्वॉल्व इन ब्लड प्रेशर कंट्रोल दे आर कॉल्ड, तो ब्लड प्रेशर के साथ अभी हमने देखा कि जो हाई प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स हैं उनको हम कहते हैं दे आर नोन एज बैरो रिसेप्टर्स which are concerned with pressure or blood pressure. This type of blood vessel where difference between systolic and diastolic becomes zero. That type of blood vessel is basically capillary, क्योंकि एओर्टा में हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है उसके बाद फॉल करता जाएगा। अगर आप अपर लेवल की बात करें तो ये सिस्टोलिक है बेटा, और ये लोअर डायस्टोलिक, इनके दरमियान कैपिलरीज के लेवल पे जाके जो डिफरेंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये वेव आपको आर्टरीज तक थोड़ी बहुत शायद नजर आ रही हो, लेकिन आगे ये वेव इस तरह की नजर नहीं आएगी। सो दैट्स व्हाई राइट ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास डेल्टा। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर एओर्टा में है और लोएस्ट ब्लड प्रेशर आपको नजर आएगा वेना के बाद। नंबर 32, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड एट, ये भी हमने बात कर ली, एओर्टा में नजर आएगा, बट हाईएस्ट वेलोसिटी इज आल्सो ऑब्जर्व्ड एट एओर्टा। हाईएस्ट वेलोसिटी भी यहाँ पे नजर आती है, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर भी। Highest velocity which is observed in aorta is 40 centimeter per second और 400 to 500 millimeter per second, जबकि वेना केवा के अंदर जो वेलोसिटी दोबारा से इंक्रीज होती है कैपिलरीज के बाद, दैट इज 15 सेंटीमीटर और 150 to 200 millimeter per second। तो हाईएस्ट वेलोसिटी भी एओर्टा के अंदर है, और हाईएस्ट वेलोसिटी के साथ साथ हाईएस्ट प्रेशर भी एओर्टा में ही ऑब्जर्व किया जाता है। Lowest velocity anyhow is observed in capillaries, और जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है ग्राफ के साथ ग्रीन लाइन, दैट इज रेफरिंग टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाईएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया
as far as distribution of blood vessel is concerned, वो कैपिलरीज में नजर आएगा. Number 33, high surface area and lowest velocity, as we have just discussed in the previous chart, कि high surface area हमें कैपिलरीज में नजर आता है और lowest velocity भी कैपिलरीज के अंदर ही नजर आती है. Just look at this. सरफेस एरिया हाई इस वजह से कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, ज्यादा नेटवर्क है इनका एक्सटेंडेड, और वेलोसिटी ये 1 मिलीमीटर पर सेकेंड या 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड नोट की गई है इन केस ऑफ ब्लड कैपिलरीज. नंबर 34, the semi-linear valves resembles to dash valves in their shape. तो ये tricuspid valves से resemble कर रहे होते हैं as far as shape is concerned. As you can see, ये bicuspid valve है जिसको mitral valve भी कहते हैं, ये tricuspid, और semi-linear valves की shape अगर आप देखें दोनों की, जो aortic है या pulmonary trunk की base पे मौजूद है, they resemble to the 3 flaps of tricuspid valve. So right option यहाँ पे होगी हमारे पास beta. Number 35, cardiac output, which is the amount of blood pumped during 1 minute, is 5 liter. Normally जिसको observe किया जाता है कि 1 मिनट में जितना ब्लड हार्ट से पंप हो रहा होगा, that is cardiac output, और ये 5 लीटर होता है. Number 36, which is pumping organ of the lymphatic system? Lymphatic system has no special pumping organ, लेकिन इसमें दूसरे जो skeletal muscles की movement है, presence of semi-linear valves, visceral organ की movement, ये इसको असिस्ट कर रहे होंगे lymph flow के अंदर. So यहाँ पे right option है delta. There is no special pumping organ in case of lymphatic system. Number 37, choose the correct sequence of impulse flow in the heart. तो कार्डियक एक्टिविटी ईसीजी के दौरान सबसे पहले जो इंपल्स जनरेट होगी साइलेंट एट्रियल नोड, देन एट्रियम, देन एवी वाल्व, उसके बाद बेटा ये वेंट्रिकल्स में आएगी और वेंट्रिकल से एक्सटेंड करेगी परकंजी फाइबर्स जो कि वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल तक जाते हैं. वेंट्रिकल्स में बेसिकली बंडल ऑफ हिस जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में मौजूद है वहां पे जाती है और फिर आप देख रहे हैं साइड पे एक्सटेंड करेगी इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल जहां पे परकंजी फाइबर्स मौजूद होते हैं. नंबर 38, lymph is not present in lacteal is a lymph vessel. इसमें lymph होगा, lymph ducts या lymph nodes में lymph होता है, but vein arteries और जो capillaries है जब इनके अंदर हम fluid की बात करते हैं that is not referred as lymph, वो lymph की बजाय होता है blood. So right option है subclavian vein. यहाँ पे lymph collect जरूर होता है लेकिन जब वो इसमें enter हो जाएगा it will be termed as part of blood. Lymph nodes are not found in, they are found in abundantly found in axillary region, they are found in the tonsils and pharyngeal region. Intestine में भी lymph nodes abundantly होते हैं, but brain is devoid of or without lymph nodes as you can see in this diagram. Which of the following is largest organ of the human body? With reference to surface area, we consider skin as the largest organ. Which of the following cell actively patrol the skin, move the skin to phagocytose the pathogens? They are basically dendritic cells, as you can observe in this diagram, जो epidermis के अंदर move कर रहे होते हैं और ये basically यहाँ पे मौजूद कुछ pathogens उनको engulf करते हैं. They are found in the epidermal portion of the skin. Alpha is the right option. The synthesis of interferon antiviral protein by the host cell is stimulated by. It is stimulated by viral nucleic acids. जब viral nucleic acid enter होंगे तो viral nucleic acid जाके ultimately activate करते हैं interferon gene को जो interferon release करवाएगा by certain types of white blood cells. तो अभी right option है हमारे पास beta. 43, major histocompatibility complex molecules जो antigen एंटीबॉडी जो है वो उसके साथ बनेंगे. दे आर इन्वॉल्व इन, तो याद रखिएगा, दे आर प्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन एंटीजेंस टू टी सेल्स फॉर फर्दर एक्शंस. जैसे यहाँ पे आपको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, वो टी सेल्स उसको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स रिकॉग्नाइज करके फर्दर एक्शन परफॉर्म करेंगे. 44, which of the following immunoglobulins they protect the human from parasitic worm infection? As far as antibody types are concerned, to 5 types हैं G8 के रेफरेंस से. Immunoglobulin type G, M, A, D और E. उसमें immunoglobulin type E, they are concerned with dealing of parasitic infections, as you can see over here.
ये हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी ऑफ एलर्जी एंड एंटीपैरासिटिक इन्फेक्शन। इसके अलावा जो लास्ट पे इम्यूनोग्लोबुलिन बी सेल रिसेप्टर के लिए, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप ए म्यूकस, टीयर्स और स्लाइवा और क्लोस्ट्रम मदर मिल्क के अंदर मौजूद होंगी, जबकि इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप जी, as far as they are concerned, they are involved in secondary responses, toxin neutralization and opsonization. And immunoglobulin type M, they are main antibody of primary responses, best at fixing complement, monomer form of, and which serves as the B cell receptor. और इसमें most abundant है हमारे पास immunoglobulin type G, which are 80%, and least abundant they are immunoglobulin type E, 0.002%. The diversity among antibodies is due to the change in amino acid sequence of their variable region, और variable region मौजूद होता है heavy और light chain दोनों के अंदर। As you can see over here, ये variable region जो है वो light chain का भी part है, variable heavy, variable light दोनों का। तो right option होगी इस केस में डेल्टा। Number 46, cyclosporin, which is used as immunosuppressant drug। ये सेल mediated response में जो टी सेल्स का रिस्पॉन्स है उसको इनहिबिट करने में यूज होती है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट बाय बर्थ इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी, और जो बाद में किसी स्टिमुलस के थ्रू गेन होगी दैट इज टर्म्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर नेचुरल वे में जो इम्यूनिटी आती है दैट इज नेचुरल, और आर्टिफिशियल अगर इंजेक्ट की जा रही है तो आर्टिफिशियल। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो फोरन से शो होता है बी सेल्स या टी सेल्स का, और जो मैमी सेल्स शो करेंगे दैट इज सेकेंडरी। Active antigenic based immunity and passive antibody based immunity. Humoral is shown by B cells and cell mediated by T cells. Innate by birth and acquired is taken from the environment. Number 48. Part of nares which act as site of gaseous exchange is, nares में पैरापोडिया गिल्स का काम करते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होंगे इंसाइड ऑफ स्किन, माउथ पार्ट्स और अदर पोर्शंस। इसमें पैरापोडिया ही ब्लड सप्लाई उसमें अबंडेंटली होती है जो कि गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले करेंगे। Which of the following type of respiratory system is observed in arachnids? Arachnids, they are having trachea, sometimes nucleus or sometimes both for the exchange of gases. तो राइट ऑप्शन है इसमें डेल्टा। पल्मोनेट लंग्स ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा मोलस्का की जो एक क्लास है स्पेशली सब क्लास पल्मोनेटा में, जो कि उनके अंदर कैविटी के अंदर गिल्स या गिल्स मॉडिफाइड गिल्स जो है वो लंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, विच आर टर्म्ड एज पल्मोनेट लंग्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग यूज बायमोडल टाइप ऑफ ब्रीदिंग एक्सेप्ट, बायमोडल मीन जो एयर और वाटर दोनों के अंदर ब्रीदिंग कर लेंगे, और उसमें या लंग्स और गिल्स दोनों मौजूद होंगे एडल्ट या लार्वल स्टेजेस पे। तो यहाँ पे बर्ड्स हैं जो कि सिर्फ एयर के अंदर ब्रीदिंग कर सकते हैं, दे आर रेफर्ड एज यूनिमोडल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द मेजर वर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अगर वर्टिब्रेट के रेस्पिरेटरी सर्फेसेस को देखा जाए तो सिंपल स्ट्रक्चर जिसमें वर्टिब्रेट्स रेस्पायर कर सकते हैं दैट इज एम्फीबियन स्किन। सो राइट ऑप्शन है डेल्टा। स्किन से भी गैसेस एक्सचेंज होता है फ्रॉग के अंदर या दूसरे एम्फीबियंस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ब्लड वेसल्स ओवर देयर एंड थिन एपिडर्मिस। एक्सटर्नल गिल्स ये कुछ फिश लार्वा में भी ऑब्जर्व किए जाते हैं और एम्फीबियंस की लार्वल फॉर्म में भी इसको ऑब्जर्व किया जाता है। एज यू कैन सी एक्सटर्नल गिल्स इन दिस केस इन सम टाइप्स ऑफ सैलमेंडर, लेकिन ये फिशेस के अंदर भी बाज़ औक़ात एक्सटर्नल गिल्स ऑब्जर्व किए गए हैं जो वाटर से gases exchange में involved होंगे। Number 54, for example, a mammal removes approximately 25% of the oxygen from air with each breath, whereas a bird removes approximately, तो birds में ज्यादा efficient respiratory system है, वो almost 90% तक ऑक्सीजन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं due to presence of parabronchial, counter current mechanism and as well as one-way flow of the air। तो ये डिफरेंट फीचर्स बर्ड्स की उनको अलाउ करते हैं फॉर एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज। नंबर 55, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ क्लोरोक्लोरिन व्हिच इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन सर्टेन एनालिट, वो ग्रीन अपीयर होगी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, जबकि
ऊमोसाइनिन जो कि क्रस्टेशियन, स्पाइडर्स या कुछ मोलस्क या ऑक्टोपस वगैरह में नजर आता है, ये ब्लू है। हीमोग्लोबिन इट गिव्स रेड कलर, और हीमोएरिथ्रिन इट गिव्स वायलेट कलर। अभी राइट ऑप्शन है डेल्टा। Age to about adult male vocal cords, they are relatively larger but having low pitch voice. The upper or closed vocal cords shown है as compared to females. Type of epithelium found in alveoli, तो alveoli के अंदर squamous, simple squamous epithelium मिलती है, जबकि बाकी जगहों पे दूसरी टाइप्स के epithelium की बात करेंगे। Simple squamous epithelium air sacs of the lungs में, simple cuboidal kidneys के अंदर, सिंपल कॉलमिनर एपिथेलियम इंटेस्टाइन में, और स्ट्रेटिफाइड लेयर बाय लेयर स्ट्रेटिफिकेशन नजर आती है एसोफेगस में, जबकि फॉल्स स्ट्रेटिफिकेशन के साथ नजर आएगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कुछ दूसरे पोर्शंस में, ब्रोंकाई वगैरह के अंदर। तो अभी राइट ऑप्शन है डेल्टा। इट इंक्रीजेस वेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, दैट इज वेंट्रल पोर्शन ऑफ मेडुला व्हिच इज कंसीडर्ड एज रेस्पिरेटरी सेंटर। ये एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगा, जबकि डोर्सल सिर्फ इंस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा। अभी राइट ऑप्शन है अल्फा। ईच हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो एक हीमोग्लोबिन में 4 जो है वो हीम ग्रुप्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, यानी 4 आयरन एटम। ईच आयरन एटम कैन बाइंड विद ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, सो राइट ऑप्शन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। Last question about today's discussion is maximum oxygen carrying capacity of arterial blood. It is 20 ml when blood is 100% saturated. इससे ज्यादा ये इसलिए कैरी नहीं कर सकता कि each gram of hemoglobin carries 1.3 ml of gaseous oxygen and 15 to 16 grams hemoglobin per 100 ml. अगर 15 to 16 को 1.35 से मल्टीप्लाई करें तो 20 ml के करीब ही आंसर आएगा। सो राइट ऑप्शन है यहाँ पे डेल्टा, जो मैक्सिमम एबिलिटी है फुल सैचुरेशन में। नेक्स्ट डिस्कशन इंशाल्लाह इट विल बी अबाउट द सर्टेन एमसीक्यूज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, और फिर इसके बाद हम पेपर सी के रिमेनिंग 2 चैप्टर्स को कवर करने के बाद मूव करेंगे पेपर बी की तरफ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।